Now, this is the fifth chapter, internal combustion engines, and we are going to study classification, application, construction, and working of internal combustion engines. Then details of two-stroke and four-stroke engine. What is the difference between two-stroke and four-stroke engine? How the two-stroke engine works? What is the working of four-stroke engine, and how they differs from each other? So these are the topics we are going to discuss in this session. Internally fired engine. Internally means internal combustion engines in which the combustion process takes place inside the piston and cylinder. Now these days most of the cylinders they are IC engines. Classification of combustion engines. Now broadly they can be classified on two bases, two categories. First of them is known as reciprocating engines and other class is known as rotary engines. The subcategory of reciprocating engine is they are first classified according to the working cycle. So working cycle means either they could be two-stroke engine or they may be four-stroke engine. Second one is according to the number of cylinders. So the second type of classification may be you can say done on the basis of how many cylinders are there in the engine block. Now it may be single cylinder engine, it may be multi-cylinder engine. So next type of classification is based on method of ignition. There is a two type of ignition is there. One is done with the help of a spark, and another is done with due to the high compression ratio of air. And when the temperature becomes very high, the fuel catches fire. So that type of ignition is known as compression ignition. Another type of classification is based on according to the thermodynamic cycle. We have recently studied these three cycles. So engine may be based on any one of them. It may be based on Otto cycle, it may be based on diesel cycle, or engine may be based on a dual cycle. So last one is according to the type of fuel used. Diesel engine, it may be petrol engine, it may be gas fired engine. Now another class of engine is rotary engines. So there is not I have taken too many classifications, just only few are taken in. First is a rotary. In case of rotary, there may be a single rotor, there may be multi-rotor. Then it may be a turbojet engine, it may be not turbojet engine. It may be single stage engine, it may be multi-stage engine. So this is the classification done in case of rotary engine. Now next is four-stroke engine. Main components in case of four-stroke engine is first is a piston and piston rings. Here there is a piston and there are the rings which is put on the piston. Then there is a crankshaft. This is a crankshaft on the bottom side. Connecting rod, flywheel, inlet and outlet valve, then spark plug. Now connecting rod is the rod which connects the piston with the crank. This is a connecting rod. Then flywheel is it is integral part of you can say crank just to store the energy during the power stroke. Then inlet and outlet valves are fitted on the top side of the piston on the cylinder arrangement, which is you can say they are fit on the cylinder head. And last one is the spark plug. Spark plug is fitted on the top side of the cylinder head. So these are the main components of four-stroke engine. Now this is the working of four-stroke engine, how it works. Let us start with the first stroke. As I already told you that four-stroke engine is based on four strokes of the piston. So the cycle starts with the suction stroke. In the suction stroke, the piston moves from TDC to BDC. Now this is the TDC. First I show you the diagrams. Now this is the TDC, top dead center. This is the bottom dead center. This is the bore, we have already discussed it. Now the space between the TDC and top of the cylinder is known as clearance volume. Now these are you can see these are piston rings. This is connecting rod. This is bigger size of the connecting rod which connects with the crankshaft, and this is the smaller size of the connecting rod which connects with the piston. This is ये साइड वाली जो है ये सारे एक्सिस के ऊपर है ये वाली,
बट ये जो है इसेंट्रिक है सारी साइड से, ये वाली। तो क्रैंक शाफ्ट इज़ अ component which converts the reciprocating motion of a piston into a rotary motion. Cut away section दे रखा है. There are 4 pistons at different positions. Now ये वाला पिस्टन है, यहाँ लोअर एंड पे कनेक्ट है क्रैंक शाफ्ट के। ये जो लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये लाइन जो है सेंट्रल एक्सिस पे शो कर रही है। ये बियरिंग जितने भी होते हैं, यहाँ पे एक बियरिंग यहाँ लगता है, एक बियरिंग यहाँ लगता है, एक दोनों एंड पे लगता है। अब उनके बीच में जो सेंटर की जगह पे है, यहाँ जो पिस्टन का बड़ा वाला एंड कनेक्ट हो रहा है, वो इस लाइन पे नहीं है, इस लाइन से हटके है थोड़ा सा। ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा साइड पे है। तो ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द कि कितने उसमें जो है पिस्टन्स या कितने सिलेंडर्स का अरेंजमेंट है, उस हिसाब से इसका एंगल डिज़ाइन करते हैं। So during the first cycle, during the suction stroke, the piston moves back from the TDC to BDC. When it moves back, during this stroke, the inlet valve remains open. When the piston moves backwards during suction stroke, inlet valves will remain open, outlet valve remains closed, and crankshaft rotation is 180. So during this stroke, fresh air and fuel mixture comes inside through the inlet valve. जब पिस्टन पीछे मूव करेगा तो यहाँ पे एक तरह से सक्शन जो है क्रिएट होगी ऊपर वाली तरफ। सो वंस द फ्रेश चार्ज कम्स इनसाइड द सिलेंडर, नाउ पिस्टन रीचेस टू द बॉटम डेड सेंटर। now during the start of the compression stroke, during the second stroke, which is compression stroke, at the start of the compression stroke, the piston is just at the bottom dead center. So during this stroke, inlet valve close रहता है, outlet valve close रहता है, और जो क्रैंक की जो मूवमेंट है 180 डिग्री होती है दोबारा, तो पिस्टन यहाँ से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जो है मूव करता है। तो यू कैन सी देयर दैट इनिशियली द वॉल्यूम इज दिस मच एंड फाइनली द वॉल्यूम बिकम्स क्लियरेंस वॉल्यूम ओनली। कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल को कंप्रेस करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ऑलरेडी फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर थी, उसको हमने यूज़ किया। अब जितनी भी ये स्ट्रोक्स चल रही हैं अपने आप, ये सारा जो एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी आ रही है जब पावर स्ट्रोक हुई थी, तो वो फ्लाई व्हील ने जो एनर्जी स्टोर की थी वही एनर्जी आगे यूज़ हो रही है। नाउ अब जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया, तो नाउ द सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट्स। सो नाउ वी मूव्स ऑन टू द थर्ड स्ट्रोक विच इज़ नोन एज पावर स्ट्रोक। अब तीसरी स्ट्रोक में क्या है, पिस्टन ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है एट टॉप डेड सेंटर, एयर फिल मिक्सचर ऑलरेडी कंप्रेस हो चुका है यहाँ पे विद इन द क्लियरेंस वॉल्यूम। Now during this stroke, inlet valve remains closed, outlet valve remains closed, and there is a spark. अब इस स्ट्रोक में सिर्फ जो है स्पार्क होगा एक, बाकी दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ये स्पार्क होगा फ्रॉम द स्पार्क प्लग ऑलरेडी विच इज़ द compressed air fill mixture which is already compressed within the clearance volume, they catches the fire and there is explosion takes place. यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा एक, उस एक्सप्लोजन की वजह से very high amount of heat is produced and very high amount of pressure is released थ्रू द कंबशन ऑफ गैसेस। तो जब प्रेशर रिलीज होगा, जब एक ब्लास्ट होगा, तो क्या होगा, दे विल पुश द पिस्टन बैकवर्ड्स। जो गैसेस होंगी उनका जो प्रेशर है वो रिलीज़ होगा जब, तो पिस्टन को पीछे की तरफ धकेलेंगी वो, दे विल मूव दे विल पुश द पिस्टन डाउनवर्ड्स। अब ये जो प्रेशर है, यही प्रेशर जो है इट विल गिव अस अ यूज़फुल वर्क या वो यूज़फुल पावर। तो इसको हम इसलिए कहते हैं पावर स्ट्रोक। सो दिस इज़ आवर मेन स्ट्रोक which is known as power stroke. Now as during the power stroke, the piston again reaches to the bottom dead center, यहाँ पहुँच गया। Now piston is here at the start of exhaust stroke. Now you know that after, as soon as the power stroke completes, all the gases burn out and this whole cylinder is filled with burned out gases. So we need to expel these gases. तो इनको जितनी भी ये बर्न आउट गैसेस हैं इनको हमने बाहर निकालना है। तो ये सारा जो काम है किस में होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता है। दिस कंप्लीशन ऑफ दिस स्ट्रोक द फोर स्ट्रोक जो इसका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द यू कैन से इंजन्स दीज डेज आर बेस्ड ऑन फोर स्ट्रोक इंजन बिकॉज फोर स्ट्रोक इंजन इज मोर एफिशिएंट दैन टू स्ट्रोक इंजन, ऑल्दो इट हैज़ लेसर पावर बट इट इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज देर इज़ लेस वेस्टेज इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। So all the diesel vehicles, petrol-based engines, motor cars, two-wheelers, most of them they are based on four-stroke engines. So now let me show you the animation of four-stroke engine. Do you able to see the animation? Yes, sir. Okay.
Now you can see over here, this is showing the कौन कौन सी stroke चल रही है. Now this is first stroke, this is second stroke, this is third stroke, this is fourth stroke. Now let us try to reduce the speed. देखता हूँ अगर कम हो जाए तो. Okay, I think speed is reduced now. Now I will start with the first stroke. Now here it is going to be just starting the first stroke. Now this is the first stroke. Now piston just start moving backwards from TDC to BDC. Now here it is showing the blue type of air which is coming inside the inlet valve. This is fresh air fuel mixture. Now second stroke starts. It compresses the fresh air fuel mixtures. Then in third stroke there is a spark. थोड़ा और स्लो करता हूँ इसको. Okay, now you will, as you can see here in the first stroke, this is okay, third stroke शुरू हो गई है. Now this is first stroke. This fresh air fuel mixture is coming inside the cylinder through the inlet valve as the piston moves from the TDC to BDC. Now this is compression strokes. It compresses the air fuel mixture within the clearance volume. Now there will be a spark as soon as the third stroke starts. So there is a spark. Now this is the piston. They are pushing the piston backwards. These are the burn out gases. Now there will be fourth stroke. Now exhaust valve opens up and exhaust all the burned out gases. They move. They are expelled from the cylinder. This is again first stroke. Air fuel mixture is coming inside the inlet valve. This valve is showing open. अब ये दोनों वाल्व क्लोज हो गए. कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होगी. ना यहाँ पे अब जैसे ही ये कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा पिस्टन पीछे जाएगा उस समय स्पार्क होगा. नाउ दे विल पुश द पिस्टन बैकवर्ड्स. ये क्रैंक देखो यहाँ पे रोटेशन मोशन को किस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे. नाउ ये बर्न आउट गैसेज बाहर जा रही हैं. फोर्थ अगेन दिस सक्शन स्ट्रोक. नाउ कंप्रेशन स्ट्रोक. This is power stroke. Now all these are burned gases. Now they will be expelled out of the cylinder from the exhaust valve. This is a exhaust stroke. So this is how this 4-stroke engine works. So next is a 2-stroke engine. Now this engine is a 2-stroke engine. As the name suggests, it completes all the processes within 2 strokes of the piston. So now the main elements of 2-stroke engine is piston and cylinder. This is piston, this is cylinder. Then crankcase, inlet and exhaust ports. अब इसमें एक ध्यान रखना है कि इस केस में आप इसको जो है वॉल्व्स नहीं बोलोगे, इसको हमने बोलना है पोर्ट्स. In case of 2-stroke engine, there are ports, there are no valves. So these ports they slides within the cutout sections. जो valves होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं. The valves are controlled with the help of rocker arms and camshaft. But this in case of 2-stroke engine, there are ports which are controlled with the movement of piston only. So एक क्रैंकेस होता है इसमें. अब इसमें जो कंप्रेशन जो हो रही है टेक्स प्लेस इनसाइड द क्रैंकेस एंड पार्शली टेक्स इनसाइड द पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट. देयर इज़ अ कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील एंड स्पार्क प्लग. तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं. थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको. ये स्पार्क प्लग है, ये कंबशन चैम्बर है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन रिंग्स लगे हुए हैं, ये स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ये गजन पिन है, एग्जॉस्ट पाइप होगी यहाँ पे ये वाली, ये ट्रांसफ़र पोर्ट है इसमें. अब बेसिकली इसमें 3 पोर्ट्स होती हैं. एक होती है इनलेट पोर्ट, ये कार्बोरेटर से जुड़ी होती है, जहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है. ये इनलेट पोर्ट है, ये देखो.
एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट पोर्ट। एक होता है इसमें ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसफर पोर्ट क्या होता है, दिस पोर्ट कनेक्ट्स द क्रैंक केस विद द सिलेंडर। तो ये देखो ये ट्रांसफर पोर्ट है यहाँ पे। उसके बाद एक एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये वाली जो ब्लू में दिखाई दे रही है, 2 एग्जॉस्ट पाइप, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है जो साइलेंसर से जुड़ी होती है। इसके लोअर साइड पे जो है ये क्रैंक केस है। क्रैंक केस के अंदर जो है इसके अंदर क्रैंक जो कनेक्टिंग रॉड का दूसरा एंड क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। यहाँ क्रैंक केस के अंदर ही इसके साथ आगे जो है क्रैंक मैकेनिज़्म है जो कि इसके अंदर जो है रोटेट करता है। सो दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। ये कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक पिन, बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक केस। सो दिस इज़ द 2 स्ट्रोक इंजन. Now let us study how it works. Now 2 stroke engine जो इसमें वर्किंग है इसकी, in 2 stroke engine the suction, compression, power stroke and exhaust strokes, these all the 3 processes they completes within 1 revolution of the crankshaft or within 2 strokes of the piston. The ports are used instead of valves, that is the suction port, transfer port, exhaust port and exhaust port. The opening and closing of ports are controlled by the movement of pistons. So initially, अब ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, इनिशियली एज द पिस्टन मूव्स फ्रॉम द BDC टू TDC, ये फर्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट हो रही है। एट दैट इंस्टेंट IP पोर्ट इज़ ब्लॉक्ड। ना IP को मैंने एब्रीवेटेड किया, IP मीन्स इनलेट पोर्ट, ये वाली जो इनलेट पोर्ट है ये ब्लॉक होगी इस समय। लेकिन उस समय एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट दोनों अनकवर्ड रहेंगी या खुली होंगी। तो अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, व्हेन द पिस्टन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, एट दैट इंस्टेंट द एयर फ्यूल मिक्सचर विच इज़ पार्शियली कंप्रेस्ड इनसाइड द क्रैंक केस। तो अब ये जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये ट्रांसफर पोर्ट खुली होगी इस समय, तो ये सारा मिक्सचर जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द अपर साइड ऑफ द पिस्टन। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ये ऊपर की तरफ। ये ऑलरेडी जो पार्शियली कंप्रेस था अब ये पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगा जब पिस्टन और ऊपर की तरफ मूव करेगा। एंड सिमिल्टेनियसली इट क्रिएट्स अ पार्शियल वैक्यूम एट द बॉटम साइड ऑफ द क्रैंक केस। द वैक्यूम ओपन्स अप द इनलेट पोर्ट। अब जब ये वैक्यूम क्रिएट होगी, जब पिस्टन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, जब पिस्टन टोटली ऊपर टॉप डेड सेंटर पे पहुँचेगा तो यहाँ से इनलेट पोर्ट खुल जाएगी उस समय। एंड मोमेंटरीली थोड़ी देर के लिए खुलेगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वैक्यूम। तो जब खुलेगी द फ्रेश एयर फिल मिक्सचर विल कम इनसाइड द क्रैंक केस। अब यहाँ पे देखो कितने काम हो रहे हैं एक साथ। जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर मूव किया तो क्या हुआ, एक तो ये ट्रांसफ़र पोर्ट से ये जो ऑलरेडी पार्शली कंप्रेस मिक्सचर था वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया ऊपर। दूसरा वो जो पार्शली कंप्रेस मिक्सचर था वो पूरी तरह से कंप्रेस होना शुरू हो गया यहाँ पे जब पिस्टन ऊपर पहुँचा। सेकंड, उसी समय फ्रेश एयर फिल मिक्सचर अंदर आ गया। कहाँ से आ गया, इनलेट पोर्ट से। तो ये 3 काम एक साथ हो गए देखो। अब आगे देखो सेकंड स्ट्रोक शुरू हो गई। जैसे ही ये पिस्टन ऊपर पहुंचा, हाफ ऑफ द साइकिल इज कंप्लीटेड। नाउ व्हेन द पिस्टन मूव्स बैक फ्रॉम TDC टू BDC, अब जब पिस्टन पीछे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, जस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कंप्रेशन द मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क। जैसे ये पिस्टन कंप्रेशन ख़त्म होने से जस्ट पहले स्पार्क हो गए। द ब्लास्ट पुशेस द पिस्टन डाउनवर्ड्स। जैसे ही स्पार्क होगा इट विल पुश द पिस्टन डाउनवर्ड्स, जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। और जैसे ही ये पावर स्ट्रोक खत्म होने वाली होगी, द मोमेंट द पावर स्ट्रोक इज़ ओवर, एग्जॉस्ट पोर्ट इज़ अनकवर्ड। जैसे ही ये पावर स्ट्रोक खत्म होने वाली होगी उसी समय ये एग्जॉस्ट पोर्ट जो खुल जाएगी। सो ये बर्न आउट गैसेज यहाँ से बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। उस समय क्या होगा, यहाँ पे पिस्टन जब नीचे की तरफ जाना शुरू होगा उस समय जो फ्रेश एयर फिल मिक्सचर जो अंदर आया था इससे पिछली स्ट्रोक में, वो कंप्रेशन भी शुरू हो जाएगी उसकी, या पार्शियल कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। सो एज द पिस्टन मूव्स फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, द एयर फिल मिक्सचर इज compresses partially. Now simultaneously the transfer port is uncovered few moments before the piston reaches the bottom dead center and partially compresses the air fill mixture. Now let us try to understand the working of two-stroke engine with the help of animation. Now this is the animation of two-stroke engine. तो इसमें 3 पोर्ट्स हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट एंड ट्रांसफ़र पोर्ट। ये वाली, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ये डिफ्लेक्टर है, ये क्रैंक है, ये क्रैंक केस है,
ना ये स्टार्ट हुआ है, देखो ये बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ है पिस्टन। तो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे ये अभी इस समय इनलेट पोर्ट खुली थी, ये देखो दिख रहा है अभी, ये देखो, ये ध्यान से देखो यहाँ पे, ये वाली पोर्ट अभी खुली है। अगेन विल ट्राई टू लुक इट बैक। अब ये पावर स्ट्रोक जो है शुरू हुई है, ये स्पार्क होने के बाद ये पिस्टन पीछे की तरफ जाना शुरू हुआ। अभी ये एग्जॉस्ट पोर्ट अभी खुली नहीं है, ये नाउ इट जस्ट गोइंग टू ओपन, ये ओपन होगी। अब ये क्योंकि ये पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गई थी, तो ये एग्जॉस्ट गैसेज जानी शुरू हो गई हैं बाहर, ये देखो। अब यहाँ से फ्रेश एयर नीचे अंदर आ रही है, और ये एग्जॉस्ट गैसेज जो ब्लैक वाली हैं बाहर जा रही हैं, यानी ये फ्रेश एयर फिल मिक्सचर है, इसको पुश कर रहा है बाहर। तो इसमें थोड़ी सी जो है वेस्टेज हो रही है, क्योंकि इसमें हो सकता है थोड़ा सा फ्रेश चार्ज भी हमारा बाहर चला जाए विद द बर्न आउट गैसेस। अब ये देखो, ये अभी ये पिस्टन जो निकल गया, ये दोबारा देखते हैं। अब ये कंप्रेशन शुरू हो रही है, जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी, और पार्शियली कंप्रेस्ड एयर फिल मिक्सचर जो ट्रांसफ़र हुआ था ऊपर, ये कंप्रेस हो गया। अब यहाँ पावर स्ट्रोक हो गई है, देखो ये स्पार्क हुआ रेड कलर का, ये स्पार्क हुआ, ये पीछे इसने पुश किया इसको पिस्टन को, ये बर्न आउट गैसेस हैं सारी, ये कंप्लीट, ये देखो पावर स्ट्रोक चल रही है, पीछे पुश कर रहा है। यहाँ कंप्रेशन हो रही है नीचे, जो नीचे एयर फ्लो मिक्सचर आया था उसकी कंप्रेशन हो रही है नीचे क्रैंक केस के अंदर। अब ये बर्न आउट गैसेस बाहर जा रही हैं, देखो एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया, एग्जॉस्ट पोर्ट खुली है। अब यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट भी खुली है, देखो ये देखो, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा ये खुली है, देखो यहाँ से, ये यहाँ से फ्रेश चार्ज यहाँ पे आ रहा है ऊपर, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो, ये बंद हो गई अभी ट्रांसफ़र पोर्ट। दिख रहा है किसी को कुछ? यस सर। दोबारा दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे कुछ है नहीं है लिखने के लिए। चलो ये देखो, ये पावर स्ट्रोक शुरू हुई, यहाँ पे नीचे कंप्रेशन शुरू हो गई है, देखो क्रैंक केस के अंदर, ये देखो पिस्टन पीछे आ रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है इसको। अब ये खुलेगी, ये वाला जो ये वाल्व खुलेगा, इनलेट वाल्व, ये कंप्रेशन कंप्लीट होगी ना। अभी ये ट्रांसफ़र पोर्ट खुलने वाली है, देखो ये ट्रांसफ़र पोर्ट खुल गई। अब ये यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रखी थी, ये यहाँ फ्यूल ऊपर चला गया ये, और ये इसको पुश कर रहा है, जो बर्न आउट गैसेस थी। अभी जैसे ये पिस्टन ऊपर जाना शुरू होगा, ये खुलेगा वाल्व, ये देखो यहाँ ध्यान से देखना, अभी ये बंद है। अभी यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रही है, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है, अभी वैक्यूम क्रिएट हो रही है, ये ट्रांसफर पोर्ट बंद होगी, ये खुल गया, देखो दिख रहा है, ये अब इनलेट वाल्व खुल गया। अभी यहाँ से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर से अंदर आ गया, ये भर गया पूरा, क्रैंक केस पूरा कंप्लीट होगी, ये पूरा यहाँ भर गया ये। और यहाँ ऊपर कंप्रेशन भी कंप्लीट होगी, जो ऑलरेडी पिछला वाला मिक्सचर था वो कंप्रेस हो गया, ये पावर स्ट्रोक शुरू होगी। अब ये पावर स्ट्रोक शुरू होने के बाद पिस्टन पीछे जा रहा है, यहाँ इसकी कंप्रेशन शुरू होगी नीचे, यहाँ ये पार्शियली कंप्रेस हो जाएगा, जो अभी फ्यूल अंदर आया था ना, एयर फ्यूल मिक्सचर, ये कंप्रेशन होगी, आधी कंप्रेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगी, ये बर्न आउट गैसेस बाहर जा रही हैं, ये ट्रांसफर पोर्ट खुल गई अभी, देखो ये यहाँ पे जो कंप्रेस किया था ना, फिर ऊपर जा रहा है, ये देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये ट्रांसफर पोर्ट खुली है अभी, ट्रांसफर पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला है अभी, ट्रांसफर पोर्ट दोनों खुली हैं। ये फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर जा रहा है, ये इसको पुश कर रहा है बाहर, जो बर्न आउट गैसेस हैं। अभी ये बंद होगी ट्रांसफर पोर्ट, ये तो पिस्टन टच कर दिया ना इसको, ये बंद हो गया, ये भी बंद होगी। अब ये खुल गया, इनलेट पोर्ट खुल गया ये। अब यहाँ ऊपर कंप्रेशन कंप्लीट हो गई पूरी, अब यहाँ पावर स्ट्रोक हो जाएगी, ये पावर स्ट्रोक, ये जस्ट स्पार्क होगा, यहाँ पे ये स्पार्क हुआ, पिस्टन पीछे आना शुरू हुआ, यहाँ कंप्रेशन शुरू होगी नीचे, ये पार्शियल कंप्रेशन होगा यहाँ पे फ्यूल। अभी ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुल जाएगी, जैसे ये पार्शियल कंप्रेशन कंप्लीट होगी, अभी ये खुलने वाली है, देखो ये खुल गया, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुल गया, यहाँ से फ्यूल ऊपर चला गया, अब ये खुलेगा इसके बाद। अब पिस्टन जैसे ही ऊपर जाना शुरू होगा, अब ऊपर जो है ये एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुली है अभी, तो ये फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो है इसको पुश कर रहा है, जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर। अब ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट बंद हो जाएगी, हाँ ये बंद होगी। अब ये फ्यूल ऊपर चला गया, यहाँ कंप्रेशन शुरू हो जाएगी, और ये वाला इनलेट पोर्ट खुल गया, अब ये देखो, अब ये इनलेट पोर्ट खुली है, तो यहाँ से फिर दोबारा एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रही है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम बन रही है, नया एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया क्रैंक केस के अंदर। अब पिस्टन पीछे आएगा तो कंप्रेशन शुरू होगी यहाँ पे, अभी देखना है, ये पावर स्ट्रोक होगी, ये कंप्रेस हो गया, बंद हो गया। तो ये इतना बहुत है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा काफ़ी कुछ, टू स्ट्रोक कैसे होता है। टू स्ट्रोक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर। इसका जो सिलेंडर का डिजाइन अलग होता है ना सर, 4 स्ट्रोक से, सिलेंडर और पिस्टन का बिल्कुल डिजाइन अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। उसमें सर इसमें पिस्टन। पोर्ट्स हैं, उसमें जो है वॉल्व्स होते हैं।
पिस्टन का है वो डिजाइन ऊपर वो नुकीला हाँ, क्यों है ये सर? इसमें ये देखो, इसने क्या करना होता है, इसने डिफ्लेक्ट करना है। अब ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से जब एयर फिल्म मिक्सचर को अब यहाँ कंप्रेस करने के बाद एग्जॉस्ट पोर्ट जब शुरू होगी तो इसको एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर डिफ्लेक्ट करना है। तो इसको कहते हैं डिफ्यूज़न या डिफ्लेक्टर। अब बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक तरह से यहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट कर रहा है। एक तरफ तो वो फ्रेश एयर फिल्म मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा है, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी बर्न आउट गैसेज हैं उनको बाहर निकाल रहा है। ये देखो, तो ये डिफ्लेक्टर है, इसको डिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये निकाल दी ना इसने बाहर, तो इसी जी वजह जी से सर। इसकी पर्टिकुलर शेप है एक। ये जो आप कह रहे हो ना, ये पर्टिकुलर शेप होती है। अब ये क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर कंप्रेशन होगी कंप्लीट। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगी, ये एयर फिल्म मिक्सचर अभी ये खुलेगा तो ये अभी एयर फिल्म मिक्सचर अंदर आएगा, ये कंप्रेशन शुरू होगी यहाँ पे। अब ये ट्रांसफर पोर्ट खुलेगी यहाँ पे, देखना। अब यहाँ कंप्रेशन नीचे जो है पार्शियल कंप्रेशन हो गया है, जो मिक्सचर आया था। अब ये ट्रांसफर पोर्ट खुल गई यहाँ पे, तो ये मिक्सचर जो कंप्रेस किया था ये ऊपर चला गया। अब ये देखो डिफ्यूज़र, ये डिफ्लेक्टर है, ये अब ये बर्न आउट गैसेस हैं। कुछ तो ये नीचे वाले से जो गैसेस ऊपर आ रही हैं उसको पुश कर रही हैं, कुछ ये डिफ्लेक्टर जो है इसके एक्शन से भी ये बाहर जा रहा है ये। तो इसमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें फ्रेश चार्ज में हमारा बाहर चला जाता है। मे बी 10 या 20% जो चार्ज है वो फ्रेश चार्ज जो है मे आल्सो गो आउटसाइड ड्यूरिंग व्हेन द पोर्ट इज़ ओपन, एग्जॉस्ट पोर्ट, क्योंकि थोड़े तो समय के इसका लिए। माइलेज थोड़ा कम होता होगा ना सर, 4 स्ट्रोक से माइलेज कम? तभी तो कम होता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रही है दो दो स्ट्रोक की। तो इसमें जो जी सर। पूरा क्लियर नहीं है सारा कुछ। जिस समय एग्जॉस्ट हो रही है उस समय जो है अंदर चार्ज भी आ रहा है, जिस समय कंप्रेशन हो रही है उस समय पावर स्ट्रोक है। तो इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, लेकिन ये पावरफुल ज़्यादा होता है इंजन। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। तो इसमें दोनों तरह से कंप्रेशन हो रही है, पार्शली यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है क्रैंक केस के अंदर, और बाकी जो है कंप्लीट कंप्रेशन यहाँ पे हो रही है ऊपर साइड, अपर वाली साइड में। सर इनलेट पोर्ट कौन कंट्रोल करता है सर? पिस्टन ही तो कर रहा है, देखो ये दिख नहीं रहा, ये पिस्टन से तो हो रहा है इनलेट पोर्ट। ये जो इनलेट पोर्ट है, जैसे ही ये क्रैंक के अंदर जो वैक्यूम बनेगी, जब वैक्यूम बनेगी तो क्या करेंगे, ये मोमेंटली खुलेगा। जब वैक्यूम क्रिएट होगा ना, जब ऊपर जाएगा, देखना अभी। जी सर जी सर। तो वैक्यूम की वजह से ये अपने आप ही इसको पीछे खींचेगा, इसको मोमेंटली खुलेगा ये थोड़ी देर के लिए। अब जैसे ये पिस्टन ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ वैक्यूम बननी शुरू हो गई क्रैंक केस के अंदर। अभी वैक्यूम बन रही है ये, और बन रही है, अभी और बन रही है। ये खुल गया, देखो ये वैक्यूम के एक्शन से जो खुलेगा ये इनलेट पोर्ट, ये खुला हुआ है अभी, क्योंकि अभी भी ये वैक्यूम बन रही है यहाँ पे। अभी ये यहाँ से फ्रेश एयर फिल्म मिक्सचर अंदर जा रहा है। अब ये जैसे ही पीछे आना शुरू हुआ ये बंद हो गया, क्योंकि वैक्यूम जो है पॉजिटिव में जा रही है, तो ये बंद हो गया। अब यहाँ कंप्रेशन शुरू हो गया। तो ये दो पोर्ट्स तो डायरेक्ट इसको कंट्रोल कर रहा है पिस्टन, ये वाली जो है एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट। इसको इनडायरेक्ट में कंट्रोल कर रहा है जो ये इनलेट पोर्ट है। बंद कर दूँ अब? यस यस। ओके, थैंक यू सर। बाय।